Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu-alaikum. Jiayanu, Pakhair-agale, Nihao, Chunashumme, Washmale. Hola, Bojo, Privyet, Kaifahal, Halishuma Chatore, Ahlan Wasal, Marhaba, Buna, Mucho Gracias, Fabia, Balli Garea. Hoj Galen and I have Sayo, Khuyamora, Chivato, Chihal, Kalimera, Khairutan. And a very warm welcome to everybody who's tuned into PTV Sports and watching Game On है. खवातीनो ज़ात मुझे कहते हैं शहजाद एहसान खान और मेरी खुश नसीबी है कि मेरे साथ मौजूद है मिस हिजाब जाहिर. अस्सलाम वालेकुम हिजाब, कैसी हैं आप? Walaikum assalam, bilkul theek thaak. Hello and welcome to all of our viewers to another jam-packed episode of Game On है. बहुत सारी चीज़ें discuss करने के लिए we sometimes run out of time actually क्योंकि इतनी सारी चीज़ें होती हैं that is happening around Pakistan cricket. But today we have a surprise for you. Guess who's back? Exactly, after a 16-hour long haul flight, ladies and gentlemen, one of the fastest men to be alive and be on this planet, ladies and gentlemen, he is Mr. Shoaib Akhtar. Assalamu alaikum, Shoaib bhai, how are you? Very good. Thank you so much for joining us. Wonderful to have you over here. Thank you very much. Again jet lagged. It's all right. But thank you so much. You know, it certainly shows your sheer commitment towards Game On and Pakistan television. Thank you so much for joining us. Wonderful to have you. Not just that, ladies and gentlemen, you know, for the past 3 days when it was Pakistan versus West Indies first test match, you know, this gentleman was on the mic and the way that he was commentating, I think was something that you will always get addicted to. His voice on the mic when he's commentating is different. When you see him on camera, he's more addictive as well. Ladies and gentlemen, he's a former test cricketer for Pakistan. Here's Mr. Basit Khan. Assalamu alaikum, Basit bhai. How are you? वालेकुम अल्लाह का शुक्र. आज ब्रांड एम्बेसडर साहब वापस आए. आपकी एनर्जी बहुत हाई चलेगी. पिछले जो आप शो कर रहे थे बिल्कुल ऐसे शहजाद लग ही नहीं रहा था. अब एकदम कभी आप कहते हैं कि फोन आता है यार, वो लोग कहते हैं कि शहजाद के साथ आज क्या आपने झगड़ा है. नोटिस नहीं किया बात में आपका इंट्रो ना दिन ब दिन ज्यादा लंबा होता जा रहा है. देख रहे हैं आप? खुश कर रहा हूँ नहीं, आज मैं बहुत कह रहा हूँ बाजी भाई आज कम बहुत फॉर्म में जेट लैग वगैरह वो तो But you guys are very well coordinated today, mashallah. हमें तो क्या लाल खूनखार. Can't say it on TV, but I guess, ladies and gentlemen, you know, for our superstars to be over here in this set with us is something which is actually going to put the stage or probably the show on fire as well. Since Hijab said that it's jam-packed, I think Hijab, there is a bit of speculation. क्या सराहियाँ हैं, सबसे पहले उसको एड्रेस करना चाहते हैं कि जी जो ट्राई नेशन सीरीज होने लगी है इसके अंदर बाबर आजम से जो है वो ओपन करा लेना चाहिए. क्या ये अच्छा मशवरा है, नहीं है? इसके जो और पहलू है उनकी तरफ हम बाद में आएंगे कि जी कामरान गुलाम आते हैं, नीचे सऊद शकील आते हैं, जो आखिर के जो 5-5 ओवर्स है या 10 ओवर्स है वो किससे कराएंगे. बट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस. Of course, साइम अयूब की इंजरी की वजह से there is a predicament for Pakistan team कि अब आपकी playing 11 क्या होगी, क्या combination होगा. And we've been discussing, you know, the first openers, we've been discussing options. But अब एक और जो scenario सामने आया वो ये है कि बाबर आजम को फखर जमान के साथ ओपन कराया जाए ट्राई सीरीज में. And if they are successful, then we might see the same combination in Champions Trophy as well. So let's take Basit bhai's view on that first of all. या क्योंकि बाजी भाई ये बात कह चुके कि उनके हिसाब किताब में जो वो जितना भी नक्शा बना सकते हैं उसके अंदर अब्दुल्ला शफीक फिट होता है. सो लेट्स मूव ऑन टू बाजी भाई फर्स्ट ऑफ ऑल. बाजी भाई, बाबर एज एन ओपनर इन वनडे इंटरनेशनल्स. देखिए बाबर को आपने टेस्ट में भी नंबर 3 खिलाया. अगर आपको याद पड़े तो जो रूट इंग्लैंड का सबसे बड़ा प्लेयर है. बाबर हम कहते हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेयर. जो रूट का नंबर नहीं छेड़ते. उन्होंने छेड़ा एक दफ़ा, 2-3 दफ़ा छेड़ा, लेकिन वो वापस चौथे नंबर पे ही आए और वहाँ सबसे अच्छा परफॉर्म करते हैं. इवन आप टेस्ट मैच में सचिन तेंदुलकर देख लें, उनका नंबर नहीं छेड़ते. नंबर 4 पे ही बेस्ट प्लेयर है आपका, नंबर 4 पे ही रहेगा. अब बाबर आजम आपका वनडे क्रिकेट में मतलब नो डाउट आपकी इसकी फॉर्म टी20 में गई हो या टेस्ट मैच क्रिकेट में गई हो, वनडे क्रिकेट में इसकी फॉर्म नहीं गई. अब आप उसमें एक्सपेरिमेंट क्यों करना चाहते हो? आप उसमें जो आपका नंबर 1 प्रीमियर बैटर है उसको आप फिर एक्सपेरिमेंट करके उसको ऊपर भेजना चाहते हो, जहाँ पे मतलब पिछले दिनों भी हम क्रिटिसिज्म क्या उसकी फॉर्म डिप हुई है तो बात तो होगी. ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा खेला है वनडे क्रिकेट, अब भूल गए हैं सब एकदम. नंबर 3 पे ही खेला है ना, नंबर 3 उसी का नंबर है. तो अब उसको चेंज करना मतलब समझ नहीं आती कि ले एक्सपेरिमेंट कर ले. चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, अब चेंज कर लो, बाबर आजम को ओपन करा लो, ये समझ से बाहर है. अब्दुल्ला शफीक की मैं इसलिए बात करता हूँ कि आफ्टर बाबर और मतलब आफ्टर फखर इन द वर्ल्ड कप सबसे अच्छा आपका बैटर है. आपने 9 महीने 1 साल से वनडे क्रिकेट ही नहीं खेली. ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा खेलता है, साउथ अफ्रीका में उसे रन्स नहीं होते, आप कहते हैं इसको बाहर कर दो. तो जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता आ रहा है, एक सीरीज 2 मैचों से वो प्लेयर ख़राब नहीं हो जाता या 1-2 मैचों से वो प्लेयर ख़त्म नहीं हो जाता. तो आप एकदम होलसेल चेंजेस करने जाते हो, वो भी इतने बड़े इवेंट मतलब आईसीसी इवेंट्स ही होते हैं. बायलैटरल सीरीज होती है
लेकिन असल तो आईसीसी इवेंट्स ही होते हैं, जब आप उसके लिए बिल्ड करते हो और जब वो सर पे आता है तो कहते हैं नहीं जी अब बाबर को चेंज कर दो, उधर ये कर दो, वो मेरा ख्याल एग्जैक्टली। लेकिन ये जो भी आपने बात की कि यार वो खत्म नहीं हो जाता, मेरे ख्याल इसी के साथ कनेक्ट करते हैं। तो अगर ट्राई नेशन में देखिए, ट्राई नेशन इज हिट एंड ट्रायल फॉर पाकिस्तान, अगर वो बाबर को ट्राई करना चाहते हैं, इसमें आपको लगता है कि कोई रिजर्वेशन हो? अगेन देखें, अब पिछले 3 साल 4 साल लगा लें बाबर के, और फिर आप ट्राई नेशन में 3-4 मैच हैं टोटल, नहीं 1 2 3 मैच, एक टीम 3 मैच खेलेगी अगर फाइनल खेलती है, टोटल 4। तो उन 3 मैच की बेस पे आपको कहें नहीं जी बाबर अब ओपन ही करे। फिर अगर चैंपियंस ट्रॉफी में जब अगर वो नहीं परफॉर्म करता तो फिर आप किधर रहेंगे? फिर आप कहेंगे नहीं जी गलती होगी। गलती तो आप जब कंसिस्टेंटली वो नंबर 3 पे खेल रहा है और उसकी परफॉर्मस में कोई डिप नहीं है, वनडे क्रिकेट में उसकी परफॉर्मेंस में डिप नहीं है। कभी आप कह सकते हैं स्ट्राइक रेट की बात होती है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस में डिप नहीं है। कितने अरसे से वो नंबर 1 है, अभी भी नंबर 1 है, अभी भी नंबर 1 ओडीआई बैटर। आप नंबर 1 बैटर इन द वर्ल्ड, आपका सबसे अच्छा बैटर, उसके साथ आपने एक्सपेरिमेंट करनी कि नहीं इसको ओपन करा दो। ठीक है, ये बाजी भाई की टेक होगी कि यार बाबर आजम के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं होना चाहिए। अब्दुल्ला शफी को आपने इतने से तैयार किया और अब जब चैंपियंस ट्रॉफी सर पे है तो आपको इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। जरा शुएब भाई की जानिब बढ़ते हैं। शुएब भाई, बाबर आजम के हवाले से आपको लगता है कि यार हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं हम, हो सकता है कि अच्छा रिजल्ट भी आ जाए, क्योंकि आकिब भाई के अभी तक तो जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं उनमें रिजल्ट तो अच्छा ही आ रहा है जी। अजम्पशन की बात हो रही है, अजम्पशन की बात हो रही है, अब अज्यूम कर लें इस चीज को, हम क्या सराही हैं? हाँ नहीं अज्यूम कर लेते हैं ना, मतलब दिस इज वन ऑफ द सिनेरियोस दैट हाँ अज्यूम ये कर लेते हैं कि जो वो सोच रहे हैं, मेरा ये ख्याल है कि वो रिजवान से ओपन कराएंगे, अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये सिनारियो है फ़खर जमान के साथ। मैंने फ़खर कभी खेलते देखा है दुबई में, बहुत तगड़ा है, बहुत डिटर्मेंट हुआ हुआ, उसने एक पूरा मैच जिताया है T20 का। तो इंटरव्यू भी मेरे साथ दे रहा था, तो कह रहा था भाईजान मैं ज़रा अच्छा फील कर रहा हूँ और मैं ग्राउंड पे टाइम स्पेंड कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं खुद चाह रहा था कि मैं डीप जाऊँ ताकि 15-20 ओवर में खेलूँ। ही इज़ वेरी कंफर्टेबल इन अ सिनेरियो दैट यू नो कि इसका अपना एक जो कोच जिसने फ़खर जमान को सिलेक्ट किया था, अगेन शाहीन बाकी लड़के सारे बहुत कंफर्टेबल आकिब जावेद के साथ, और आकिब जावेद भी बहुत अच्छा आदमी है, उसको भी पता है यार कि मुझे बच्चों से काम लेना है। आप देखें, आपको अज्यूम कर लेते हैं बाबर को 3 से नहीं छेड़ना चाहिए, ये बात ठीक है, ठीक है, इसी पे स्टिक करना चाहिए आपको। क्यों? आपको मिडिल ऑर्डर एक्सपोज होता है अगर बाबर आपका 1 डाउन ना आए, ठीक है। आपको 6-7वें पे आपको रिजवान नहीं चाहिए, या 5वें पे भी नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि रन बॉल की चलो उनके अंदर होगी सलाहियत, लेकिन बड़ी हिट मारने का अगर टाइम आ गया, थोड़ा एक आधा चौका लेने का काम आ गया, छक्का मारने का टाइम वो नहीं है। उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन उसका ओपनर है, ओके, जो रिजवान का है। रिजवान अगेन अपना टाइम स्वीट टाइम ले सकता है, अज्यूम करते हैं कि वो इधर उधर चल चुल के बिजी ये रहेगा, फ़खर अपना लैश आउट कर सकता है। सो आई थिंक अज्यूम करते हैं कि अभी सिलेक्शन नहीं हुई तो ये सिनेरियो, अगर ये भी हो सकता है कि आके आउट ऑफ द वे जाकर नया ओपनर ही ले आए, तो फिर ये भी अजम्पशन में है, वो कर सकता है ये चीज़। तो इसमें 2 चीज़ें नहीं, अब टेस्ट मैच स्काउट का अनाउंस होने दें, एक बात तो तय है कि बाबर को 3 पे खेलना चाहिए। चलो ठीक है, ये एक क्योंकि हम ये अजम्पशन बेस्ड बात कर रहे हैं और इस तरह की क्या सराही चल रही है, मैं जरा वापस बाजू भाई की तरफ तो अगर फर्ज करें ये हो जाता है, ये जो अजम्पशन है ये रियलिटी की शक्ल ले लेती है, तीसरे नंबर पे किस बैटर को देखते हैं फिर आपके, यार ये तीसरे पे इसको खिला लो फिर, क्योंकि बिल्कुल ही तबाही हो जाएगी। वो शुएब भाई की बात ठीक है कि मिडिल ऑर्डर एक्सपोज हो एक जाएगा, ट्रिकल डाउन इफेक्ट हम देख रहे जब हैं। ये हो जाएगा तो फिर सवाल बनता है। अभी तो हम कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, वो आपने कह तो दिया, अब वो वो भी कह रहे हैं ये हो रहा है। अगर हमारी बात वो फिर भी नहीं मान रहे तो आप दूसरी भी हम वो भी सोल्यूशन देंगे, नंबर 3 पे कौन बिल्कुल खेलेगा? बिल्कुल मुझे नहीं पता नंबर 3 पे फिर कौन खेलता है। अगर आपका वर्ल्ड नंबर 1 रैंक प्लेयर जो ऑलमोस्ट विव रिचर्ड्स के बाद सबसे ज्यादा डेज हैं उसके नंबर 1 रैंक के, और अभी भी है। अगर आप उसको चेंज कर सकते हो, 3 से हटा के ओपन करा सकते हो, फिर 3 पे आप किसी को भी खिला लो, उससे क्या फर्क पड़ेगा? जब आपने वर्ल्ड्स बेस्ट, मतलब अनडाउटेडली इस वक्त वनडे क्रिकेट में कितने सालों से वो नंबर 1 है, उसको अगर आप चेंज करके ओपन करा सकते हो, फिर मेरी तरफ से 3 पे किस मर्जी फिर किसी को भी खिला लो। आई थिंक ये बात मेरे ख्याल है यहाँ समअप भी होती है हिजाब, और उसकी वजह ये है कि जब आपने नंबर 3 के जो अच्छा वो खिलाड़ी जो कि नंबर 1 रहे और फॉर द लॉन्गेस्ट डेज रहे, अभी भी नंबर 1 है, उसको आप हटा सकते हैं, फिर तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल है इस तरह का एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। जरा वापस अब जरा शुएब भाई की जानिब भी आता हूँ। शुएब भाई, बाजी भाई ने तो अपना मेन स्टे दे दिया कि भाई फिर किसी को भी खिला लो, आपके ख्याल में तीसरे नंबर पे आप किसको देखते हैं कि यार ठीक है अगर बाबर को आप ओपन करा रहे हैं, तीसरे पे कौन खेलेगा, या आपको भी सेम जवाब है? सेम
Same. Same galaxy. बस किसी एक को बात पता- होगी है ना, अब उसके बाल की खाल उतारने का वायदा नहीं सर। जी अब उसने कह दिया, मैंने भी कह दिया, मेरा ख्याल अगले सवाल पे जी, यानी कोई इख्तिलाफ नहीं आपका। नहीं नहीं, बेस्ट प्लेयर है, अब उस पर क्या पूरा प्रोग्राम बाबर पे करना। वो ठीक है यार, वो बेस्ट प्लेयर है। वहाँ से भी आए कुछ। यही वेट कर रहे थे। ये जो मेरे साथ बार बार सवाल करता है ना, आपका सीट पे होना बहुत जरूरी है। वो बार बार एक ही सवाल को दोबारा दोबारा करता है, तो मानता नहीं। बड़ा मिस किया आपको बहुत बादल मिस भाई, किया। है ना? नहीं, काबू मेरे ही आता है। बट मैंने ठीक इसके है यार, अपने को बड़ा करके देखो, अनऑर्थोडॉक्स थिंकिंग के साथ आकर जीवन जा सकता है, ये आप उससे बैद रखें। जी ये मैं आपको बता रहा हूँ। उनको कोई पता नहीं, अब वो रहरा ले या वो शफीक ले या कोई ले या कुछ कर ले। मेरा ये ख्याल है और बाजीद का भी यही ख्याल है, इन दोनों में से जो दोनों टाइम लेते हैं, बॉलें बहुत खेल जाते हैं, जिसमें रिजवान और बाबर है, ऐसे ही है ना। ऐसे ही है। हम बीच वाली बात करते हैं, हम एक को चांस देते हैं ऊपर खेल ले। ठीक है। अब बात समझ आएगी नहीं टेक्निकल? आ गई। नहीं समझ आई इनको। नहीं आ गई नहीं है। आई, एंड यू फील लाइक कि बाबर इज सेट एट 3, तो ठीक है ना, हम ये कहते हैं कि क्लासी बैट्समैन को, चलो ठीक है, अगर खुदा ना खास्ता ऊपर से आउट हो जाता है तो ये भी लंबे बॉल, ये भी ज्यादा बॉल खेल जाता है, तो हम स्ट्राइक रेट की फिक्र नहीं करते और बात भी नहीं करते, तो एक को नीचे चलने देते हैं, चलो वो 30-35 ओवर तक खेल ले, यही चाह रहे हो ना। अब मेन मसला जो बाजीद का रहता है हमेशा, 5वें छठे पे कौन खेले। देखो वनडे और T20 जीते इन नंबरों से जाते हैं, वो करते हैं 35-40 या 53-50 ही करते हैं या 70 करते हैं, मसला उधर फंसता है फिर, क्योंकि इनकी रिकवरी भी, अगर लेट्स से फखर की रिकवरी ना हो सकी या रिजवान की ना हो सकी, रिकवरी कौन करेगा? बाबर तो नहीं करेगा। बाबर की रिकवरी किसने करनी? वो मुश्किल है। दैट इज द प्रॉब्लम। Exactly. तो इन प्रॉब्लम के अंदर एड्रेस करना, तो मैं दो ज्यादा तेज ज्यादा बॉलिंग खेलने वाले में एक को मैं ऊपर देता हूँ जिसके पास लंबी शॉट्स मारने का ताकत नहीं है, जो फखर 4-5 के रने, हम फखर और रिजवान को ऊपर करते हैं। ठीक है। बाबर तुम आ जाओ, तुम अपना रन बॉल खेल लो, चलो 70 पे 70 कर लो, तुम रन बॉल खेल लो, हम तुम्हें ये नहीं कहते कि तुम 100 के 150 या 30 के स्ट्राइक रेट से खेलो, चलो तुम 100 पे 100 खेल लो, कोई ऐसी बात है, तुम चलो, कोई ऐसी बात नहीं। उसके अराउंड जो खिलाने हैं ना, देन अगेन इज अ प्रॉब्लम, दैट यू हैव टू पिक, you will pick that and you'll cover that कमजोरी and weaknesses to move With those forward in order to get what 275 plus, remember this। यस ये पाकिस्तान की विकटें हैं, और बाय द वे विकटों से ज्यादा ग्राउंड के क्या हालात हैं? ग्राउंड आपको दिखाते हैं, ग्राउंड के बड़े अच्छे हालात हैं बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा वी है, हैव Ground सम आपको विजुअल्स जरूर- कमिंग इन। थैंक यू वेरी मच यार। ग्राउंड हम आपको हाँ दिखाएंगे। यार, वेरी वर्ried अबाउट इट यार। ग्राउंड में मैं आपको लेके चलता हूँ, लेकिन चूंकि बाबर रिजवान के हवाले से बात हुई है, मेरे ख्याल है आई थिंक इट सम्स इट अप ब्यूटीफुली, जैसे बाजिद भाई और शोएब भाई ने बात की है। स्क्वाड के हवाले से, प्रीलिमिनरी स्क्वाड्स के हवाले से, मैंने जैसे कल भी जिक्र किया था, हिजाब नबी के साथ जो है चैंपियंस ट्रॉफी में जो टीम शिरकत करी, उनके प्रीलिमिनरी स्क्वाड्स आ चुके हैं। पाकिस्तान के बारे में भी कोई खबर नहीं है, आई थिंक दे टेक अ लिटिल मोर स्वीट टाइम एज वेल। तो इसलिए जो हम, चूंकि बांग्लादेश और न्यूजीलैंड पे हिजाब हम पहले बात कर चुके हैं, आई थिंक सबसे पहले अब इंग्लैंड के प्रीलिमिनरी स्क्वाड चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बात करते हैं, और फिर उसके बाद मजीद आगे इस बात को बढ़ाते हैं कि ये स्क्वाड कैसा लग रहा है। मैं बाजू भाई की तरफ जाना चाहता हूँ। बाजू भाई, इसके बारे में जो इनफेमस सेंटिमेंट है वो ये है कि यार ब्रैंडन मैकलम ने शायद अपने जो टेस्ट फेवरेट्स हैं उनको स्क्वाड में ज्यादा जगह दी है, कि वो यूनिफाई करना चाहते हैं अपने ओडीआई और टेस्ट स्क्वाड को। देखिए, इसमें जो सबसे जो एक चीज़ आपको नज़र आ रही है वो है पेस, और आर्चर को ये लेके आए हैं वापस, और मार्क वुड को भी रखा है। तो ये स्पिनर्स, हम कह रहे हैं कि एशिया में स्पिनर्स, वो स्पिनर्स पर उन्होंने कॉन्सेंट्रेट नहीं, कार्स भी अच्छी ठीक ठाक तेज़ बॉलिंग करता है, तो इन्होंने फास्ट बॉलर्स पे इंसार ज़्यादा किया। ज़ाहिर है जो भी, वो तो टेस्ट मैच क्रिकेट भी इसी तरह खेलते हैं जैसे वनडे क्रिकेट होता, बट इनको जो पिछले वर्ल्ड कप में प्रॉब्लम हुई थी कि इनकी एजिंग टीम थी, इस दफ़ा थोड़ी सी वो करेक्ट की है इन्होंने। जेकब को लेके आए पहला आईसीसी इवेंट हाँ के जी, लिए। वो लेके आए हैं, बट जो नॉर्मल से हट के ये है कि जो कंसंट्रेशन है वो पेस पे है। एक आदिल रशीद है, लिम लिविंगस्टन शायद बॉलिंग करें, लेकिन कंसंट्रेशन जो है वो पेस पे है कि पेस मैच जिताएगी, वो विकेट लेंगे। बीच में स्पिनर्स बॉलिंग करेंगे ज़ाहिर है मिडिल ओवर्स में, बट फास्ट बॉलिंग पे बहुत इन्हिसार है। बिल्कुल इन्हिसार फास्ट बॉलिंग के हवाले से आपने ग्राउंड्स की बात करें, पाकिस्तानी पिचेस पे सबसे ज्यादा तेज गेंदबाजी आपने कराई है जी। मेरा ख्याल है बेन स्टोक्स चूंकि इंजर्ड है, सैम करन और रीस टॉपली ऑब्वियसली उनके भी थोड़े इंजरी सैम के करन तो मामले खेल रहा है अभी ILT20 सैम करन। मेरा ख्याल है अभी वो तो जो बात कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि शायद उसका इंजरी का कोई इशू है सैम करन, Anyways, व्हिच इज व्हाई ही इज नॉट इन द ILT20 प्रीलिमिनरी खेल स्क्वाड। रहा है। एनीवेज, लुक्स ऑलराइट। आई थिंक उनके जो 15 ओवर या 17 ओवर का डेफिसिट है वो पूरा करेंगे लिविंगस्टोन से और आदिल से।
तो ये डेफिसिट पूरा करेंगे, बट मेनली फोकस इज ऑन द फास्ट बॉल्स। और हमारी पिचेस के ऊपर यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी में यार Pacers- देखो यहाँ पे देखो ना, अर्ली इन डेज ऑफ पिचेस की बात है, बिकॉज यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है। अब पर एक तो मुझे ये भी देखना है कि मैच किस वक्त शुरू करा रहे हैं, ये दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ड्यू फैक्टर अब 4 बजे पड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि ग्राउंड बहुत ज़्यादा ठंडा होता है ना। ओस का गिरना एक चीज़ है, घास का ठंडा होना दूसरी चीज़ है। ठंडे घास के ऊपर स्किट थ्रू करना बॉल एक होता है, ओस के ऊपर बॉल क्रॉस सीम से पकड़ कर एक और चीज़ होती है। अगेन आई थिंक दिस ओनली गोइंग टू हेल्प द फास्ट बॉलर्स, और सीमिंग कंडीशंस हैं, क्योंकि अब ये पाकिस्तान को देखना है कि सीमिंग कंडीशंस के ऊपर आप कितना रिलाई कर रहे हो। वो मेरे ख्याल में इसी पे जा रहे हैं कि हम ठंडे मौसम में फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे, लेकिन विकटें जो मेरी इतला के मुताबिक है वो 300 की बनाना चाह रहे हैं, 300 प्लस की। Exactly. अगर ये विकटें अगर 300 प्लस वाली नहीं बनती या 300 वाली नहीं बनती, तो देन अगर थोड़ा सा मिसबिहेव कर जाते हैं तो ये देखें यहाँ पे तो 230 भी नहीं होना फिर, 50 को 400 भी हो सकता है, वरना 200 ये आपको एक बड़ा अच्छा शीन छोड़ना पड़ेगा विकेट के ऊपर। ग्राउंड्स बने हैं, ग्राउंड्स के इम्पैक्ट होते हैं, याद रखिएगा उनकी वॉल्स के ऊपर, उसकी एयर फ्लो के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है विकेटों से, उसकी वेंटिलेशन से इम्पैक्ट पड़ता है, फिर उनके लोग बैठे हैं उनकी हीट से पड़ता है, फिर मौसम से पड़ता है। घास चलोगे उसके ऊपर चलोगे तो वो ऑब्वियसली जैसे थे कहाँ पर दाग पड़ जाते हैं घास के ऊपर, अभी वो अनयूज्ड है। बड़ी सी चीज़ें फैक्टर्स हैं मेरे ख्याल में। पाकिस्तान ऐसे आई थिंक क्रिकेट बोर्ड डन अ वंडरफुल जॉब। आई थिंक अगर वो विकटें अच्छी बनाने में कामयाब हो जाते हैं, स्टेडियम तैयार करने में कामयाब हो जाते हैं, और टूर्नामेंट it is not up to Pakistan Cricket Board, it is about the whole country that they needs to go out there to make sure this tournament is successful, because it's a matter of our pride now. Exactly. ये अब बोर्ड का ये नहीं रहा कि जिम्मेदारी के बोर्ड ही करेगा, आपने भी टीवी पे बैठ के मुंह अच्छा खोलना है। प्लीज़ माय रिक्वेस्ट टू एवरीबडी आउट देयर, तो जो हो गया उसको छोड़ दो, अपनी रील्स के लिए, अपनी रील्स के लिए, हाँ अपनी रील्स के लिए, अपने व्यूज़ के लिए प्लीज़ ये काम मत करो। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई नेवर ट्वीटेड वन सिंगल बिट अबाउट द ग्राउंड्स एंड एवरीथिंग, सो प्लीज शट अप and make sure that you know the Pakistan Cricket Board is ready and we are ready to. I think it's a wonderful message, and everybody needs to kind of come around this message as well. Pakistan's hosting, I think it all needs to be, you know, party poppers around as well. But very quickly, क्योंकि ये समझने के लिए तो थोड़ा सा आप नहीं समझे ना, रील्स का उन्होंने बार-बार मेंशन किया, तो आप जरा मेरी अगर आप कोई एक रील बाजी भाई मुझे दिखा दें जिसमें कोई नेगेटिव कंटेंट हो, तो आपकी जो सजा देंगे मुझे मंजूर होगी। जहाँ शुएब भाई आपने ये तस्करा किया कि अल्लाह करे कि पीसीबी जो है वो अच्छी विकेट्स बनाने में कामयाब हो जाए। जब आप अच्छी विकेट बोलते हैं तो आप what do you see in that wicket? कि यार ये bit अच्छी of wicket everything for everybody. स्पिनर Bit भी, of- पेस bit of भी, everything. बाउंस भी, Bit of everything यार, जो बैक बैंड कर रहा है वो बाउंस ले ले, ठीक है। ठीक है ना। अब सब कॉन्टेंट में ये आप तो नहीं एक्सपेक्ट करते ना, तो आपको तकरीबन आधे फुट का बाउंस आपको नेचुरल मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको बैक बेंड करनी पड़ती है। तो वो आधा फुट हो या 1 फुट हो, वो आपको बॉल उठाना पड़ता है, उसके जोर लगाना पड़ता है। बट जो आपका जोर सब कॉन्टिनेंट में लग रहा है, उसका आधा जोर आपका इंग्लैंड में लगता है। आप जो 3 टेस्ट मैच खेलते हैं, इक्विवेलेंट टू 6 टेस्ट मैचेस इन इंग्लैंड। in England. गर्मी नहीं है, ग्राउंड मजे के बहुत हैं जी, आराम से क्राउड इतना Favorable conditions हैं आपके क्राउड मुताबिक। बैठा हुआ है, शुगर लग रहा है, पता नहीं चलता, दिन ऐसे आया गुजर गया, है ना। लॉर्ड्स में क्या दिन पता चलता है। ऐसे हल्की-हल्की तालियां बज रही हैं। सिर्फ गर्मियों में, सिर्फ गर्मियों में लगता है, वो भी अगर रोजे हो तो। मेरा ख्याल अगर बहुत लंबा है। बाउंस इवन Even बाउंस bounce हो, हो, ठीक हाँ। बाउंस हो तो पिच सही रहेगी। अगर लो बाउंस है तो फिर मज़ा ख़राब होता है, मतलब अगर अनइवन बाउंस है फिर तो बहुत ही मज़ा ख़राब होता है। मेन थिंग है कि बाउंस अच्छा हो, और बाकी तो वनडे बस क्रिकेट में ये runs तो- देखना यार, ये कौन सा फॉर्मेट है, 50 One day का की फॉर्मेट, one day। 50 का फॉर्मेट है ना। इस फॉर्मेट को ही बचाना है, क्योंकि इंडिया ने तो वैसे ही बेड़ागर कर दिया हार के वर्ल्ड कप। मैं तो चाह रहा था इंडिया जीत जाता, जब वो आ गया था उसके गड़गंजे में आ गया था वर्ल्ड कप, वो पकड़ लेता। बिकॉज देखो यार, एक बात समझो, उनके फाइनेंस से दुनिया की क्रिकेट चल रही है ना। ऐसे ही इस फॉर्मेट को फायदा हो जाता कि इंडिया अगले 4 साल ये कहता रहता कि हम ये वर्ल्ड कप जीते। ट्रू। मेरी सिर्फ इसमें ये थी कि यार इंडिया जीत जाए और इस फॉर्मेट को बचाया जाए, फॉर्मेट की कमर्शियल वैल्यू बढ़ जाती है। कमर्शियल वैल्यू बचाई जाए, हाँ। ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया के जीतने, ऑस्ट्रेलिया 10वां भी जीत जाए, 12वां वर्ल्ड कप, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया के जीतने से पैसे पोर इन होते हैं। और मेरी लॉजिक समझ रहे हैं। बिल्कुल। अब इस फॉर्मेट में अगर आप गंदी विकेटें बनाओगे, पहले ही नहीं इंडिया फेवरेबल अपना आने में फेवरेबल था,
ना वो वर्ल्ड कप जीता है, अगर अच्छे मैच भी ना देखने को मिले पिंडी इस्लामाबाद में, अगर वो कंपटीशन ना हो, कंपटीशन भी ना हुआ तो इंटरेस्ट लूज हो जाएगा। बिल्कुल। और पाकिस्तान ने बहुत हाई पेस टूर्नामेंट की भी इस वक्त। और बाय द वे तो दुबई तो ऑल सोल्ड आउट हो गया। इमेजिन करें यही अगर 2 मैच इंडिया के होते अपना आपके लाहौर में, तो क्या बात आपका लाहौर पूरा सोल्ड आउट लड़ाई होती फिर तो टिकटॉक नहीं टिकटें नहीं यार, होटल्स बेवरेज पूरी इकोनॉमी आपकी सोल्ड आउट होती है। दिस इज द इम्पैक्ट दैट इंडिया हैज, दिस इज द इम्पैक्ट पाकिस्तान हैज ऑन द इंडियन मीडिया एज वेल, The entire वाइस ecosystem वर्सा, comes वाइस into play. वर्सा। तो पैसे जो बनते हैं वो इंडिया पाकिस्तान पूरी दुनिया में आप जो मर्जी कह लें, इसी Ashes, ये competition वो पे यार बनते प्लीज हैं, रहने दो। आप Yeah. ऑस्ट्रेलिया कब जा रहे हैं आप? आई डोंट नो। तो फिर कमन से बात करें ना, उसने ज्यादती की है। अच्छा भला सारा कुछ स्मूथ जा रहा था, उसने जाके सब आगे पीछे थोड़ा कर थोड़ा दिया, ऑफ स्क्रिप्ट चला गया, जरा लेकिन गलत अगर कर हम दिया सारा, उससे बात करनी पड़ेगी। यार उसको रेट ही कोई नहीं करता उसको कैसे। लिफ्ट ही कोई नहीं करता। एज अ कैप्टन वो सारा कुछ जीत गया है, टेस्ट चैंपियनशिप जीत गया, वर्ल्ड कप जीत गया, T20 जीत गया, तो पता नहीं कितने टेस्ट मैच हैं। द परफेक्ट अच्छा एथलीट, जब उसको बुलाया कप्तान, वो जी फास्ट बॉल का दिमाग नहीं होता। अच्छा किसका होता है दिमाग? ही इज प्रूव्ड दैट रॉन्ग ना, ही इज प्रूव्ड अच्छा वसीम अकरम बुरा कप्तान था, शाहिद अफरीदी अच्छा इमरान कप्तान खान बुरा कप्तान था? नहीं, हम आप बताएं ना। था। ये दुनिया की वसीम इसलिए अकरम तो जो one of the कहते हैं finest बैट्समैन captains. बड़े थिंकर होते, सॉरी नो ऑफेंस, तो बड़े थिंकर होते हैं यार, एक्चुअली फास्ट बॉलर डूअर्स होते हैं। या Yeah. गो गेट काइंड ऑफ सोच होती है, गो गेट इट डन। अरे हमारे टेस्ट क्रिकेट में तो हमारे फास्ट बॉलर्स गो गेटर्स जब तक तुमने बैट्समैन बनाते रहे पाकिस्तान क्रिकेट में, पाकिस्तान क्रिकेट नीचे जाती रही है। ठीक है, ये तुम निकाल के देख लो। यानी कि सईद देखो अनवर, यार इमाम उल हक, ये मसला सब लोग ये खेले। नहीं है, देखो पाकिस्तान क्रिकेट ओनली पाकिस्तान क्रिकेट का रूज कब मिला है? फास्ट बॉलर कप्तान। अंडर अ फास्ट बॉलिंग, फास्ट बॉलर कप्तान का क्या मसला होता है कि एक तो वो खुद फास्ट बॉलर है, ऊपर से वो कप्तान है, उसने अपनी परफॉर्मेंसेस देनी है, वो मैच विनर होगा True. जो भी हो। विकी भाई को ले लो, ही वाज़न्ट अ बैड कैप्टन ईदर। I mean, it's debatable. I mean, Yeah, he yeah. wasn't a bad captain, but या बट हिज परफॉर्मेंसेस देखो, Yeah, yeah, yeah. हिज परफॉर्मेंस आउट द रूफ। नहीं, और Exactly. सबसे बड़ी Later part of एग्जांपल his तो career. हमारे सामने इस वक्त जो जीती जागती है वो है पैट कमिंस पैट की। और कमिंस, अगर हम उनकी बात करें तो एक नज़र डाल लेते हैं साथ ही हम ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड के ऊपर, देख लेते हैं कि उनके क्या हालात है। जहां इंग्लैंड गया फास्ट बॉलिंग के साथ, वहीं पर हम देखेंगे कि ये जो ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड है लेड बाय पैट कमिंस, ये कैसा है। तो बाजू भाई आपका क्या ख्याल है स्क्वाड के बारे में? Arnes Labush. देखिए वही, ये ऑस्ट्रेलिया तो पक्के अपने टेस्टेड जो टेस्ट मैच के प्लेयर होते हैं उनको ज़रूर स्क्वाड में रखता है। आप देख लें स्टीव स्मिथ भी है और लबुशेन भी है, वो लबुशेन भी है, आपके पास ट्रेविस हेड भी है, जॉस हेजलवुड भी है, Maxwell. एरिक कैरी भी है, पैट कमिंस भी है। तो वो सारे वही प्लेयर्स लेके mix आते and हैं match, जो उनके साथ खेलते। स्टार्क भी है, तो इनका स्क्वाड आपको मोरलेस पता ही होता है कि 14 में से 10-11 लड़के कौन से आएंगे। ग्लेन मैक्सवेल का देखना है कि इधर बहुत स्पेशली इन कंडीशंस में उसका बहुत बड़ा रोल होगा, वो कैसे खेलता है। अगर वो फॉर्म में हुआ तो ये मैच निकाल के ले जाएंगे। ट्रेविस हेड पिछले 1 साल से बहुत ही शानदार ऑल बैटिंग कर रहा है। फॉर्मेट Yeah. तो वो जो 3-4 इनके जो प्लेयर्स हैं जो इन कंडीशंस में बहुत मतलब मैच विनर्स होंगे। बाकी आपने देखा ये स्टीव स्मिथ और लबुशेन को खिलाते इसलिए हैं कि जहाँ पे मैच 19-20 होगा तो ये Step up लेके करेंगे। चलेंगे। अगर आप फाइनल याद करें तो हम सारा वर्ल्ड कप में बात कर रहे थे कि ये मार्नस को क्यों खिलाई जा रहे हैं, फाइनल में जाके उसने खेल गया। शोड खेल हिज गया। तो वर्थ। Yeah. वो उस सिचुएशन में भी 2 प्लेयर ऐसे रखते हैं कि जो 50 ओवर अगर कहीं ये फंसते हैं, क्योंकि बहुत अटैकिंग खेलते हैं, तो अगर फंसते हैं तो ये 2 बैटर्स उनको 50 ओवर मतलब कंसोलिडेट करके लेके चलें। Exactly. I think you wonderfully summed it up as well. और जहाँ बाउंस की बात हुई थी, अगर बाउंस थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो मेरे ख्याल है ऑस्ट्रेलिया कैन एक्चुअली पुट अस इन ट्रबल एज वेल। यार शुएब भाई, आपने तस्करा किया था कि जी ग्राउंड्स की क्या कंडीशन है। मैंने आपसे वादा किया था कि हम आपको ग्राउंड्स की जो करंट सिनेरियो उसके ऊपर भी आपको लेके चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, लुक्स लाइक एज इफ वी आर इन फाइनल टचेस, वी आर जस्ट अराउंड द कॉर्नर एज वेल। लेट्स गो, लेट्स टेक गुड लुक एट हाउ कदाफी स्टेडियम लुक्स नाउ। जंगले उतर गए यार फाइनली। आई थिंक दैट्स अ गुड न्यूज। यू कैन फाइनली हैव Wonderful दैट news. एक्सपीरियंस। लेट्स गो, लेट्स टेक अ लुक फॉलोड बाय ब्रेक। गेम ऑन है। वेलकम बैक टू गेम ऑन है। और ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको कुछ विजुअल्स दिखाए थे गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के, और वहाँ पे जो अपग्रेड्स चल रहे हैं, वहाँ पे जो काम चल रहा है, विच इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट, विच इज़ एक्सट्रीमली एक्साइटिंग फॉर एवरीबडी इंक्लूडिंग आवर फैंस एज वेल। तो शुएब भाई आपसे शुरू करेंगे। व्हाट वर योर थॉट्स ऑन द अपग्रेड्स? जंगला हट गया? नथिंग शॉर्ट ऑफ मिरेकल, I'll be honest with you। और ये पंगा मैं कभी नहीं लेता, और जब मैं चैंपियंस ट्रॉफी करा चुका फिर मैं अपग्रेडेशन की तरफ जाता। बट यू नो चेयरमैन साहब हैज़ अदर आइडियाज एंड ही इज डन इट।
और अल्लाह करे ये स्ट्रक्चर मजबूत हो, अब इसके ऊपर 30-40-50 हज़ार बंदा बैठेगा, कायम रहे, क्योंकि एक सीमेंट को जोड़ने के टाइम भी चाहिए होता है ना। बहरहाल इंशाल्लाह वो भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, व्यूइंग बहुत अच्छी हो गई है, अपग्रेडेशन हो गई है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो गया है, ये नहीं होना था, ठीक है ना, तो ये हो गया। और बहुत सारी क्यासराइयाँ हुई, सारी बातें हुई, मैंने कभी कोई बयान नहीं दिया, मैं हमेशा कहा यार इल डू इट, इल गेट इट डन। ऐसा ही So, लेकिन ये हैट्स ऑफ टू द अथॉरिटीज, हैट्स ऑफ टू द लेबर्स, द इंजीनियर्स, एवरीबॉडी, और सारे अलॉन्ग विद एफडब्ल्यू, सारे इंक्लूडिंग क्रॉस द बोर्ड, दे मेड श्योर 8-8 घंटे की 3 शिफ्टें लगी हैं। yes. और इस तरह ये Continuous work पूरा around हुआ the है। clock. बस यार मुल्क भी हमारा ऐसा 8-8 घंटों की 3 शिफ्टों पे चला जाए तो अब गद्दाफी स्टेडियम क्या पूरा मुल्क ही उठ जाएगा। और जो 8-8 घंटे की शिफ्ट करे वो अपना काम पूरा करे। सिनेमा चौक भी ऐसे ही चल रहा है। हाँ बिल्कुल ऐसे चल रहा है यार, बिल्कुल। अब हमें उसकी कैपेसिटी लाइव है, अपडेट्स हमें देते रहते हैं इट्स ऑल अबाउट हिजाब अटेंशन, यू नो। आपकी इंटेंट ठीक हो ना, दुनिया में कोई काम भी है आपके मुश्किल। मैं हमेशा कहता हूँ पहले आसमान के नीचे जो कुछ भी है अल्लाह ने आपके लिए बनाया, आप उसको मुज़ख्खर कर लें। मसला कोई मसला नहीं है, मसला सिर्फ इंटेंट का होता है, बस कर लें, इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा। बिल्कुल। मेरा ख्याल है नियतों पे, वो अमालों का जो दारोमदार जो है वो नियतों पर होता है। मैं जो आपने अभी बात की इसमें एक और बड़ी अच्छी इंसाइट है, कंस्ट्रक्शन का काफी एक्सपीरियंस रखते हैं शेख भाई अल्हम्दुलिल्लाह, कि सीमेंट को पक्का होने में टाइम लगता है। आई थिंक देयर रीजन फॉर दैट। मैं इधर बाजी भाई की तरफ से डिफरेंट बात आता हूँ, इसमें मेरा इंटेंट गलत नहीं है। 1996 के बाद अब आप 2025 में गालिबन देखेंगे कि हम आईसीसी का कोई टूर्नामेंट होस्ट करने जा रहे हैं। 1996 से लेके 2024 तक क्या बीच में कभी इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई काम हुआ कि यार हमें थोड़ी क्वालिटी बेहतर करने की जरूरत है? जनरल तकीर ज़िया ने किया ना यार, जनरल तकीर ज़िया साहब ने किया ना, कितना किया 2000 में, आपको पता भी है इस चीज़ का? इसलिए तो पूछ रहा हूँ। हाँ तो यही बता रहा हूँ ना आपको, आप मिस कर रहे हैं वो लिंक, वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिंक है। 1999 में से लेकर 2000 से लेकर 2001-3 तक आपको जितनी अकेडमीज, ग्राउंड जितने बने, आपके तकरीबन 35 ग्राउंड्स बने हैं उसमें, उसमें अकेडमीज बनी हैं, जॉब्स आई हैं, क्रिएशन हुई है। न सिर्फ क्रिकेट को पैसे दिए हैं बल्कि हॉकी को भी पैसे दिए थे, ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ। फुटबॉल को भी पैसे दिए हैं, स्क्वॉश के भी दिए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट ने हेल्प अदर स्पोर्ट्स एट द सेम टाइम। और जो आपकी अकेडमीज बने थे, मेरा तो खैर मजाक उड़ाते थे 2002 में, तो मैं उनसे कहता था कि अकेडमीज मत बनाए, यहाँ पे 3 बड़े टावर्स लाएं। आज जरूरत पड़ गई ना टावर की, बिल्कुल पड़ी हैं, बिल्कुल। लेकिन शीदा बात नहीं मानेगा। शीदो ने मुझे उस वक्त बड़ा क्रिटिसाइज किया, ये क्या कह रहा है, क्रिकेट के साथ ग्राउंड में टावर क्यों होना चाहिए। और मैंने कहा इतनी इंपॉर्टेंट जगह पे इस पे पैसे कमाओ, पैसों से दुनिया चलती है, इकोनॉमिक्स भी चलती है। मैं बार बार पिटता रहता हूँ, ये तुम्हारे इमोशन से बैठ के यहाँ कुछ नहीं होना। यहाँ जब तक आप पैसे नहीं जनरेट करोगे, रेवेन्यू स्ट्रीम को ऊपर नहीं लाओगे, काम नहीं चलेगा। Exactly. आप वो ले लिया ना टावर। इसी तरह सिमिलरली इस ग्राउंड पे भी अकेडमीज को भी तोड़ के, एक हिस्सा प्रैक्टिस का छोड़ के बाकी आप खड़े कर लो। आई थिंक ये बड़ी आपने खूबसूरत बात की है। देखिए बहुत सारे जितने भी जो आपके साथ क्रिकेटर्स खेले, फॉर्मर क्रिकेटर्स हमारे जितने भी हैं, वो भी हमेशा ये बात करते हैं कि यार शुएब को जो है वो वक्त से पहले चीजों का पता होता था। आई थिंक some bit of it I would know as well, and I think I'm going to say it out loud on television as well कि कुछ चीजें शुएब भाई ने इससे पहले हमसे भी तज़किरा किया कि यार ये हो जाएगा, वो चीजें हमने होते हुए देखी है। क्या खास अता है को अल्लाह की, शुएब भाई जानते होंगे मेरा ख्याल है, या इनका अल्लाह जानता होगा। वैसे बाजी भाई की तरफ वापस आता हूँ। बाजी भाई, सच अ लॉन्ग हॉल इन होस्टिंग एन आईसीसी इवेंट फॉर पाकिस्तान। आईसीसी इवेंट तो अपनी जगह है, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि आपने जब दुबई चली गई आपकी क्रिकेट, तो आपने बिल्कुल अपना जो भी इधर इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो भी डेवलप था, उसको आपने ज़ाया किया। मैं गद्दाफी स्टेडियम, कराची स्टेडियम की बात नहीं कर रहा। जहाँ पे स्टेडियम्स में क्रिकेट होती थी वो ज़ाया हो गई। सियालकोट का स्टेडियम ख़त्म हो गया, एक ज़माने में गुजरावाला का स्टेडियम ख़त्म हो गया, LDCA का शेखुपुरा का स्टेडियम ख़त्म हो गया। तो आपने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बिल्कुल लुक आफ्टर नहीं की। दुबई में हो रही है जी, बस ठीक है, दुबई में ही होते रहे। मेरे ख्याल उस ज़माने में बोर्ड भी खुश था कि मैच दुबई में ही हो। इवन जब PSL हो रही थी, वो हिजाब हंस रही है, PSL वाले भी खुश थे कि दुबई में ही हो। बड़ी मुश्किल फाइनल हम लेके आए थे पहले पाकिस्तान आया वापस। वो मतलब सेठी साहब को क्रेडिट जाता है कि जबरदस्ती उन्होंने, सब कह रहे थे कि नहीं जबरदस्ती लेके आए, वो ठीक है। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अगर अब जाके चेयरमैन साहब अब जाके अपग्रेड कर रहे हैं, तो पिछले चेयरमैन क्या सोच रहे थे, क्यों नहीं कर रहे थे? उसको प्रायोरिटी नहीं बनाया। अगर आपको ये आईसीसी के जो चैंपियंस ट्रॉफी है, ये काफी देर से अनाउंस थी। ये ऐसे नहीं कि आपको 6 महीने पहले पता था कि आपके, तो आपको अपग्रेडेशन जो है, पहले चेयरमैन ने क्यों नहीं सोचा कि यहाँ पे अपग्रेडेशन चाहिए?
प्लस द फैक्ट कि आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास क्रिकेट का था वो आपने उन सालों में ज़ाया किया, उसको आप अपग्रेड ना करते, उसको प्रिजर्व कर लेते, प्रिजर्व नहीं आपसे किया गया, तो उससे पाकिस्तान की जो वेन्यूज़ हैं वो भी कम हो गए हैं। हम बात करते हैं कि पिचेस ऐसी होनी चाहिए, टेस्ट मैच में लोग नहीं आते, हम जब वेन्यूज़ आप कर्टेल कर देते हैं तो जाहिर है पे जो हर ग्राउंड का डिफरेंट नेचर होता है उस पर आप खेलते नहीं हैं, तो दैट इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम। अब फैसलाबाद की हम बात करते हैं या शेखुपुरा की बात करें या हैदराबाद की बात करें, अगर हैदराबाद में ग्राउंड अवेलेबल है, आपको पता है कि इंटरनेशनल में अब 5 स्टार होटल की ज़रूरत है, तो आपने उस पर क्यों नहीं कॉन्सेंट्रेट किया? और जब एक लल आ गया कि पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हो रही, आपने कहा जी बस छोड़ ही दो, सारा कुछ छोड़ ही दो, को पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आनी ही नहीं है। इंस्टेड के आप अपने जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको प्रोटेक्ट करते, आपने उसको बिल्कुल ही जाने दिया, और उसकी वजह से अब आपके पास बिल्कुल आपके पास अब टेस्ट मैच क्रिकेट में आप कहते हैं जी, अब जैसे फॉर इंस्टेंस ये सीरीज देख लें, अगर अपग्रेड हो रहा है लाहौर और कराची तो आपके पास ग्राउंड ही नहीं बचा। मुल्तान में ही टेस्ट मैच, सारे मैच मुल्तान में, क्यों? क्योंकि आप और वेन्यू नहीं खोला हुआ, आपने वेन्यू प्रिजर्व नहीं किया हुआ। तो वो जो अब जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट जो ब्लेम जाता है वो पिछले पीसीबी जितना मतलब 10-12 साल का पीसीबी, उस पर ब्लेम जाता है। स्पेशली जब पाकिस्तान दुबई में खेल रहा था तब आपकी कंसंट्रेशन बिल्कुल ही नहीं थी। आपने कहा कि जी पाकिस्तान के ग्राउंड जो है 2-4 हैं वो ठीक है, बाकी आपने जाने दिए। और अब मतलब एलडीसी है वो शेखुपुरा के ग्राउंड में आप देखें तो वहाँ मजे फिर डिबेटेबल है बाजी, डिबेटेबल ना। 6 चेयरमैन आए 6 महीने के लिए, उन्होंने क्या बनाना था और क्या ही उन्होंने बेचना था, मेरी बात समझे? अब एक सेटल चेयरमैन आया है जिसके पास अथॉरिटी भी है, पैसा भी है और विल भी है, तो वो कर सकते हैं। बाकियों के पास तो मुझे पता था कि एक ही साल में 3 गुजर गए, ऐसे ही है ना। और दूसरा यार देख ना बाजी, देख सही कह रहे हैं आप, लेकिन यार फॉर लास्ट 25 years ना, allow me, for last 20 years of our Pakistan national cricket was suffering because of war on terror. दूसरा हमारे यहाँ पे देखो ना, एक बड़ा टूर्नामेंट आया ना 96 में वर्ल्ड कप आ गया जी, तो अपग्रेडेशन आ गई। हमारे पास इवेंट बेस्ड कोई चीज़ आई नहीं रही थी पिछले 20 साल से। आई अंडरस्टैंड, आई गेट इट, लेकिन बट द थिंग इज हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में पैसे ही नहीं ना। हम अगर साउथ अफ्रीका के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, वो अगर 30 साल आइसोलेशन में रह के अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते थे, और बनाया उन्होंने। केप टाउन न्यूलैंड बना है, जोबर्ग बना है, पी बना था, ठीक है। हमारा वो स्ट्रक्चर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ही नहीं बनाया। एक्चुअली अगर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के ऊपर प्राइवेटाइजेशन हो जाती ना, और बाजीद इस बात पे मैं इसके साथ मिल जाता हूँ, अगर इन डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाती, अगर आप ये लीज आउट कर देते स्टेडियम, अगर उसमें कॉन्सर्ट की जगह दे देते, उसमें फेस्टिवल की जगह दे देते, उसमें फर्स्ट क्लास की जगह दे देते, 5 स्टार होटल की जगह बनने देते, तो ये इंटेंट किसने लानी थी? कोई मेरे मामू जी ने तो नहीं लानी थी ना। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो आपके पप्पड़ शप्पड़ ने सोचना था ना ये चीज़। भाई ने बात की भी थी डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम की, लेकिन मैं ये शोएब भाई, हम नहीं ये नहीं करते डिसेंट्रलाइज ना, लेकिन अगर आपने सेंट्रलाइज किया हुआ है तो ये फिर सारी जिम्मेदारी आपकी है। बिल्कुल अग्रीड, बट डिसेंट्रलाइज, अगर डिसेंट्रलाइज आपने नहीं किया हुआ, मतलब अगर इस्लामाबाद को सॉवरेन नहीं किया हुआ और आप कहते हैं जी हम ही चलाएंगे, तो ये सारी जो बातें हैं, अग्रीड, ये सारी आपने करनी। आई एग्री, बट अगेन उन सेंट्रलाइजेशन में चेयरमैन भी पुख्ता नहीं आए ना। नहीं, ये तो एक इंटेंट मिसिंग थी ना, जो आपने इंटेंट इंटेंट की बात ही, चेयरमैन मिसिंग है ना। लेकिन मैं तो पीछे जा रहा हूँ ना, 2009 से जा रहा हूँ, मैं तो पीछे जा रहा हूँ, 2009 से जा रहा हूँ। जब आप दुबई चला गया ना, तब की बात कर रहा हूँ, जो 5-6 साल आपके पास था। अच्छा, वो भी मेरी डिबेट है, हमें दुबई की जगह ना होम सीरीज उनके घर पे जाके खेलनी चाहिए थी। वो मेरी बात समझे? अगर न्यूजीलैंड की होम सीरीज दुबई में खेलनी थी, मैं समझ रहा हूँ, उससे पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा को नहीं हुआ दुबई में खेल के। आप नंबर 1 बन गए हो, निकला क्या बाद में? फिर कुछ नहीं। एग्जैक्टली अगर तुम 6 साल या 10 साल लगातार उनकी होम सीरीज में हारते, मैं तुम्हें गारंटी बता सकता हूँ, गारंटीड, मुझसे लिख लो, तुम्हारे 200 लड़के तैयार हो जाते। बिल्कुल, आप बिल्कुल, मैं आई बिल्कुल अग्री विद यू, बट फिर भी मैं मेरा
बात सिर्फ इतनी है कि जितने आपके पास थोड़ा बहुत जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको कम से कम उसको preserve करना प्रोटेक्ट कर लेते, अपग्रेड की बात नहीं, प्रोटेक्ट कर लेते। हाँ संभाल लेते हैं। अब जल्मी वाले बेचारे परेशान जब होते हैं। यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही थी तो शायद उन ग्राउंड्स को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर देना चाहिए था। दे शुड हैव स्टिल बीन प्रिजर्व्ड। So agree to disagree. यार बात ये है वाजीद को बिटवीन द लाइंस में समझ वो गया, इतने समझ लाइक ही गया। लोग नहीं मैं वही कह रहा इतना हूँ, दूर सोच मैं वही कह रहा हूँ ना। अब आप वो इतने आप इतने इतने मैं अब यही इतने उनको क्यों लाए हैं आप जिनके विजन ही कोई नहीं बेचारा यही तो आपको कह रहा हूँ। अगर आप टावर की बात, एक चेयरमैन ये पूछ रहा है कल पाकिस्तान वेस्ट इंडीज का मैच है वो तो प्लेयर्स का नाम ठीक नहीं पता बात है प्लेयर्स के नाम नहीं पता थे ठीक तरह जब प्रेस फिर कॉन्फ्रेंस ये में बैठे लाओगे तो वो क्या वो तुम्हारा बिल्कुल, सिस्टम रिजर्व करेगा बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो अपनी chairmanship आप reserve ये करेगा। कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि टावर बना लो, ये चेयरमैन आ रहा है या पीसीबी आ रहे हैं, वो कह रहे हैं जो दुबई चलेगी अब वापस आनी ही नहीं पाकिस्तान की। ओ यार ये तो देखो ना शॉर्ट साइटेड लोगों की कहानी है ना। अगेन बाजीद मसला सिर्फ ये है कि मैं क्या कहता रहता हूँ, अगर इस मुल्क में कमी किस चीज़ की, कुछ भी नहीं, कमी सिर्फ लाइक लोगों की है और लाइक लोगों को ऊपर लाने की है। अगर लाइक लोगों से आपको नफरत है, अगर प्रोग्रेस से आपको नफरत है या आपको तरक्की से नफरत है तो उसमें तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता ना यार। देखिए इसको सबब कर लेता है कि भाई जो 2009 से बाजू बात करें वो मेरा ख्याल है शुएब भाई ने अंदिया दे दिया कि शायद लाइक लोग नहीं थे जगह पे। हो सकता है लाइक हों भी, वो अपने थॉट प्रोसेस में ठीक होंगे, लेकिन जहाँ इंटेंट की बात की उसके क्या साथ ठीक 100% एग्री करना पड़ेगा। ठीक होते तो ये हाल होता। इसीलिए बात ये है ना, देखो ना, हमने ये नहीं देखना कि पिछले 20 साल में स्टोरी ऑफ द मॉरल स्टोरी क्या निकला। मॉरल स्टोरी ये जो कह रही है एक बंदा इंटेंट और अथॉरिटी के साथ आया बना गया। ठीक, मॉरल स्टोरी ये निकला जो ये कह रहा है, वो कह रहा है नहीं यार प्रिजर्व कर लेते, आप सिस्टम खड़े कर लेते, आप आइसोलेशन में चले गए थे 20 साल, दैट इज फाइन, वी अंडरस्टैंड दैट व्हाट वी आर गोइंग थ्रू फॉर लास्ट 25 आई गेट दैट, वी गेट दैट। मैं शेयर सुना आप नीचे तो बात ये वक्फे की तरफ जाना चाहता हूं। चले जाएंगे ना, क्या होगा, वक्फा होता रहेगा। जी आए सर प्लीज कंप्लीट। चलो बस अब जाओ अब यही है ना यार, बात समझने की कोशिश करो। See, it wasn't an argument or a debacle, but I think that when great minds sit together, it's not really important that they think alike as well. So everybody can have their own perception and their own ideology on how things really need to rule out. And I think that we really need to respect both of these gentlemen on how they have commented on कि 1996 से 2024 तक अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रिजर्व भी कर लेते बीच में जब दुबई वाला सारा इशू आ गया, हमें होम मैचेस खेलने पड़े। आई थिंक both the takes are pertinent. 100 marks to both of these amazing gentlemen. We're heading out towards a short break. Once you will come back, we're left with India and Afghanistan, the preliminary squads. We'll speak about it and why. I think there was a question which I posed to Bazil bhai, why West Indies and Pakistan at 8 and number 9, the World Test Championship cycle 23 and 25. We'll see if we have time, otherwise tomorrow. But game on and don't go anywhere. We'll be right back. वेलकम बैक टू गेम ऑन है। और ब्रेक पे जाने से पहले बातचीत चल रही थी तैयारियों की चैंपियंस ट्रॉफी की, और जहां बात तैयारियों की है वहां पे हम बात करेंगे मजीद स्क्वाड्स की जो सामने आए हैं। और सबसे पहले बात करते हैं हमारे रवायती हरीफ इंडिया की, तो एक नज़र ज़रूर डालेंगे इंडिया के स्क्वाड के ऊपर जो उन्होंने प्रीलिमिनरी स्क्वाड अनाउंस किया है, विच वुड बी लेड बाय रोहित शर्मा। और बहुत बड़े बड़े नाम इस स्क्वाड के अंदर शामिल है, लेकिन एक नाम जो मिसिंग है जो कि वाज अ बिट सरप्राइजिंग टू मी बाजिल भाई, वाज द एक्सक्लूजन ऑफ मोहम्मद सिराज। उसको जो है एक्सक्लूड करके यहाँ पे अर्शदीप सिंह को लाया गया, जो कि ओडीआई शायद उतना नहीं खेलते, ही इज़ अ वेरी गुड T20 प्लेयर, बट शायद ओडीआईज में उतना उन्होंने एक्सपीरियंस हासिल अभी तक नहीं किया। तो हाउ डू यू सी दैट एक्सक्लूजन एंड द ओवरऑल स्क्वाड एज वेल? देखिए अर्शदीप बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है काफ़ी अरसे से, तो उसको उन्होंने एज ए लेफ्ट आर्मर भी रखा है, क्योंकि बाकी सारे इनके राइट आर्मर्स हैं। शमी को वापस लेके आए हैं, बुमराह फिट होता है कि नहीं होता वो भी अभी थोड़ा क्वेश्चन मार्क ज़रूर है। शमी को इन्होंने रखा है जो कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत इसकी ज़रूरत थी, बट अभी ये भी शमी भी इंजरी के बाद आ रहा है, तो वो ये दोनों देखना पड़ेगा। तो एक जो नाम थोड़ा सा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद वो उसको रखे, वो थे स्काई को उन्होंने नहीं रखा। दुबई में स्पेशली जहाँ पे बॉल इतना बल्ले पे नहीं आता, उसका बीच में होना शायद मेरे हिसाब से उसको होना चाहिए था, बट ओवरऑल बहुत ही तगड़ा स्क्वाड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है। इसमें कोई मतलब आप वीक लिंक बड़ा ही मतलब आप गौर व फिक्र करें तो शायद एक आधा वीक लिंक, लेकिन बिल्कुल कोई ऐसी जगह नहीं है जो इन्होंने पूरी नहीं की। सिर्फ फिटनेस के बुमराह का इशू है, शमी का भी इशू है क्योंकि अभी वो भी इंजरी से आ रहा है, और शायद मुझे ऐसे लगता है कि शायद जहाँ पे अगर बॉल फंसने लग जाए तो ऐसा डायनामिक नंबर 6 पे ऐसा डायनामिक प्लेयर, स्काई जितना डायनामिक प्लेयर दुनिया में नहीं है, बट 6 पे
स्पेशली दुबई की कंडीशंस में नहीं। So Mazin bhai is going to miss on Surya Kumar Yadav. जरा शोएब भाई की तरफ भी जाता हूँ। शोएब भाई, you know, keeping in mind के India will be playing all of their games in Dubai as well. So you know, looking at the bowling or pace attack or spin attack, how do you see them? Well constituted. I think सूर्या कुमार को ना अय्यर को उन्होंने प्रेफरेंसेस दी। अगेन सोचा ये गया है कि ही कैन एक्चुअली प्ले अ लॉन्गर इनिंग्स। आई थिंक नो डिसरिस्पेक्ट टू स्काई, आई थिंक ही कैन बी वेरी डेविस्टेटिंग। ही इज वेरी वेरी डेविस्टेटिंग व्हेन इट कम्स टू तो भाई हो सकती है। बिल्कुल। या अय्यर को उन्होंने प्रेफरेंस दे दी है इस पे। दूसरा ये कि यार आई थिंक इनके पास स्पिनर बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल। बहुत ही अच्छे हैं। जडेजा हो गया, कुलदीप हो गया, ये कुलदीप तो यादव। आपके 20 ओवर तो आपके ये गए। यहाँ पे आपको थोड़ा सा अटैक जडेजा पे करना पड़ेगा आपको। जडेजा पे आप पे रन बॉल तो बनता ही है, इफ नॉट मोर। बट आफ्टर ऑल आई विल सी दैट बुमराह, शामी, अब देखें इट्स वेरी वेल सेटल्ड स्क्वाड व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग, बैटिंग। उनका new ball, old ball, ऑलराउंडर्स everything बहुत is हैं। covered. हार्दिक है बीच में, बॉलिंग वो भी माइंड यू वो पूरा बॉलर है, हम उसको बॉलर कंसिडर नहीं करते। ये दैट इज वेरी रॉन्ग थिंग टू डू, और हमेशा उससे हम हारते हैं। वो हमेशा की पॉइंट पे विकटें ले जाता है। अच्छा, अब यहाँ चलते हैं, टीम तो बहुत स्ट्रांग होगी। जी। मसला बॉन्डिंग का, मसला बॉन्डिंग की इंडियन टीम की। बहुत सारे कैंप्स विद इन द कैंप्स बने हुए हैं। बने। अब ये वो टूर्नामेंट है जो इंडिया को बना सकता है एज ए न्यू मैनेजमेंट। ठीक है। इंडिया को रिवाइव कर सकता है एज ए टीम। ठीक है ना। स्पेकुलेशंस हैं, थोड़े कैंप्स हैं, इधर है, ये बातें हो रही हैं, बीसीसीआई ने ये लगा दिया, उन्होंने ये कर दिया, फलान ने ये कर दिया, यू नो बहुत सारी गेच मैच हो गई है काम की। ठीक है। अब देखें यहाँ पे रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऑब्वियसली जिस तरह बाबर पे प्रेशर है इस तरह विराट पे भी है। They बिल्कुल are the backbone of their batting. यार, बैकबोन होना और डिलीवर करना दो बड़ी चीजें हो गई हैं। अब देखो वी आर स्टक इन अ सिनेरियो वेयर दे हैव टू परफॉर्म। Yeah. तो इन ऑर्डर टू गेट आउट ऑफ दिस होल सिचुएशन दे हैव टू परफॉर्म। देयर इज नो अदर वे कि ये आए भी नहीं for either Babar, either Virat, either Rohit Sharma, because a lot on him right now. Yeah. It's a lot on him. अब इंडिया को यहाँ से टीम भी बनना है, क्वालिफाइज में भी जाना है। बिकॉज देखिए मेरा ये टेक है कि इंडिया हैज टू प्ले सेमीफाइनल। दैट इज नो टू वेज अबाउट इट। देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। पाकिस्तान शुड नॉट प्लेइंग सेमीफाइनल। देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। So Pakistan and India will play the semi-final in Dubai, and obviously you know all the other teams will be नहीं, वही traveling. कैसे एक ही पूल में है तो जी एक जी एक इसलिए। pool में नहीं। अच्छा, अब मैं जरा एक और भी बात यहाँ पे करना नहीं चाहता हूँ। खेलेंगे फाइनल। एक और भी बात सर आपसे Final करना में चाहता हूँ। जी। मैं बात भाई, आप अभी एक और बात हुई थी जो पीछे अभी शोएब भाई ने भी डायरेक्ट किया थोड़ा सा कि जी वो जर्सी पे पाकिस्तान होगा नहीं होगा, ये वो, फिर किसी ने कहा जी आईसीसी के रूल्स है तो लिखवाना ही पड़ेगा। आपकी इसके बारे में क्या टेक है कि क्या सवाल क्या है? फॉर सो मच टू इंडिया की तरफ से जो जिस भी किस्म की क्या सराही आती है कि जी अगर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट करा सो वी माइट नॉट इवन वांट पाकिस्तान's नेम ऑन द जर्सी और ऑन द कैप, जिसके बाद उसको ये कहा गया। देखिए अनऑफिशियल बातें हैं ये, मतलब वो रूमर्स हैं। आप एंड में तो कोई ऐसा मसला नहीं था, ये रूमर्स क्रिएट करते हैं। हमारे यहाँ भी मीडिया रूमर क्रिएट करता है, वहाँ पे भी बहुत है। इस दफ़ा पहली दफ़ा मैंने देखा है वैसे कि जो ऑस्ट्रेलिया टूर पे थे, पहली दफ़ा के मीडिया में इतना ज़्यादा कुछ आया। इससे पहले आप इंडियन टीम के बारे में मीडिया में कभी नहीं। तो जो शोएब भाई कह रहे हैं वो कैंप में प्रॉब्लम ज़रूर है। बिल्कुल। वो गौतम गंभीर है या विराट कोहली और रोहित शर्मा जो सीनियर्स प्लेयर हैं उसमें प्रॉब्लम ज़रूर है। Clash है उनके। तो वो मीडिया में पाकिस्तान की खबर ज़रूर आती है कि जी वो ड्रेसिंग रूम से किसी ने ये बात कर दी, वो बात कर दी, वहाँ पे नहीं Unfortunately. आती। थी। वहाँ पे पहली दफ़ा है। बट ये जो मतलब इस पे कमेंट करना कि जी वो नाम नहीं लिखवाएंगे, ये तो आप रूमर है ना, ये ऑफिशियली तो किसी ने नहीं लिखा ना। Yeah. रूमर पे आप कहाँ कह देगी बड़ी गलत बात है वो तो। It's all going to come down to the game that they're going to play against. I think देखें यार, देखो कुछ चीज़ें मीडिया के लिए होती हैं, कुछ हाइप्ड होती हैं। ठीक है। देखें अगर टॉकिंग पॉइंट्स भी नहीं मिलेंगे जैसे आपको मिल गया एक टॉकिंग पॉइंट, इस तरह कई लोगों की दुकानें चलती हैं। जी। ठीक है ना। हमने एज ए एक्सपर्ट, एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर द कंट्री एंड फॉर अदर कंट्रीज, यार हमें उनका भी ख्याल रखना पड़ेगा। हमने ऐसी बैलेंस बात करनी है कि हमने मेक श्योर करना है कि इंडियन फैंस भी हर्ट ना हो, पाकिस्तान का बैलेंस भी बचे। देखो जी। मैं अच्छी बात की बात नहीं कर, डिप्लोमेसी की बात कर रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ यार कि देखो अबव एंड बियॉन्ड वो भी हमारे भाई हैं यार, कोई मसला नहीं। आप ग्राउंड में आ जाओ हमारे साथ। वही तो नहीं आ रहे ना, नहीं, आ रहे हैं मैं यही तो ना। लेके आना चाह रहा था। जो कंपटीशन मैटर करता है वो करता है यार जो ऑन द ग्राउंड। अब मैं तुमसे पॉलिसी डिस्कस करने बैठ जाऊंगा ना शहजाद, तो फिर तो काम पूरा हो गया ना मेरा। समझे मेरी बात? तुम्हें पता है कि हम
किस मुश्किल से निकल के यहाँ तक पहुंचे हैं। ऐसे ही है। यू नो तुम्हें नहीं पता नहीं यार, मुझे पता है चीजें। अच्छा, सो फाइनली एटलीस्ट पाकिस्तान एटलीस्ट गेट टू कीप द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। जो इज हैपनिंग इज पाकिस्तान, ठीक है, माइंड यू, माइलस्टोन, Yeah. एक चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद कराना। दूसरा आप सिक्योरिटी सिचुएशन वो उसको कंटेन करना, फिर आपके लॉजिस्टिक कंटेन करना, फिर आपको इंडिया को टेबल पे लाना, चैंपियंस ट्रॉफी कराना। देखो ना कितने प्लसेस हैं टुवर्ड्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड पाकिस्तान इटसेल्फ। मैं सिर्फ वकालत करूंगा अपने मुल्क की, ठीक है ना। अब मैं ये कहूंगा बाद में यार कि तुम आ जाओ ग्राउंड पे, हम तुम्हें वहां देख लेंगे। अब तुम 23 फेब को आ जाओ, दैट इज फाइन विद मी। देखो मेरा झगड़ा इंडिया के साथ इतना होता है कि ग्राउंड में आ जाओ, हम वहां बात कर लेते हैं। अब मेरा ये मसला था कि सामी अयूब अगर फिट ना होता ना, ये मैच वन वे था, और फखर जमान ये सिर्फ वन वे ट्रैफिक होनी थी। Either of them could have taken the game away. आपको आइडिया नहीं ना उसने करना क्या था। साइम ने पूरा उसको आकर जो लाइसेंस देता, और मैं भी उसकी जगह होता तो मैं क्या बेटा कोई प्रेशर नहीं, अगर 4 मैच हम जीत के क्वालिफाई कर रहे हैं, आप रिलैक्स हो जाओ, छोड़ना नहीं। वो मैं एक्चुअली कॉन्टेस्ट देखना चाह रहा था, एग्जैक्ट वाइस वर्सा। देखो ना वाइस वर्सा मैं इंडिया की तरफ देखना चाह रहा हूँ कि हिंदुस्तान अब आए कि आगे पीछा डाले, हाँ जी आ जाएं, आप भी आ जाएं, जरा हम भी आ गए हैं, अब जरा मैच ऑन होता है। देखिए दैट्स व्हाट इज गोइंग टू सेल क्रिकेट, कि एक हेल्दी कंपटीशन इज गोइंग टू जनरेट अनदर जनरेशन that is going to be inspired to play another a game of cricket, beautiful game of cricket. This is what I'm looking for. मैं ये नहीं देखना चाह रहा यार कि इंडिया के कुछ एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, वो बदतमीजी कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, छोड़ दो यार। मुझे ये बताओ कि इंडिया पाकिस्तान से कितने नए बच्चे पैदा होंगे, कितने इंस्पायर होंगे, कितने खेल जाएंगे, और कितने बुमराह बन जाएंगे, कितने बाबर आजम बन जाएंगे, कितने अपने हीरोज पिक कर लेंगे। रिमेंबर माइंड यू 92 के बाद हमारी एक 20 की लॉट आई थी, तो जो सिर्फ इमरान खान को देख के बनी थी। ऐसे ही है ना, मैंने बनना था वकार यूनुस, मैं बन गया। मैंने ये तो नहीं कभी कहा मैं उनको रिप्लेस करूंगा, बट इवेंचुअली पीछे पड़ गया उनके साथ। तो वही बात है, he inspired you. या एग्जैक्टली। तो मुझे उनके स्पेल, मैं तो कल रात को भी देख रहा था उनके स्पेल न्यूजीलैंड के, मैं तो कल रात को देख रहा था। मैंने कहा यार इधर से क्या कर रहे हैं ये। सो मैं तो इंग्लैंड सीरीज देख रहा था, 96 का उनका मैं टूर देख रहा था, तो मैंने कहा ये 96 का टूर है जहां पे मैंने इनको अब मैंने रिप्लेस करना। दैट्स व्हाट आई थॉट ऑफ इट। अब जगह ही नहीं दे रहे, जब हम टिकटॉक खोलते स्पेल आपके चल रहे हैं आगे, इंस्टाग्राम खोलते आपके स्पेल चल रहे हैं आगे। विक्की भाई इज द लेजेंड ऑफ द गेम यार। आई मीन ही मैनेज्ड टू इंस्पायर्ड मी इन टर्म्स ऑफ टू मी द फास्ट बॉलर्स। मैं रन अप कॉपी करता था, उनका सारा कुछ करता। बात ये है अल्टीमेटली, देखें मुझे ये पता था कि 96 के बाद 97 इज माय ईयर, राइट वाजिद? तो 97 से आगे 15 साल मेरे हैं। तो यही वो चीज़ है 23 फेब 2025 के बाद अब मैं बाबर और बुमराह और कोहली की जगह, बात सुनो, मैं हूं। दैट इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। थैंक यू। आई एम नॉट लुकिंग फॉर ये बकवास और ये बदतमीजी, ये वो, दैट्स फाइन, ये चलता रहेगा, होने दो। वो ठीक है, बेचने दो टीवी यार, अगर टीवी बेच रहा है, लोगों की जॉब चले, दैट्स फाइन विद मी। मैं वो इसकी आई एम नॉट अगेंस्ट दैट बाय द वे। But thank you so much for this diplomacy. I think it was needed. This is what we call soft diplomacy and sports diplomacy as well. मेरा जो सवाल पूछने का मकसद था वो ये था कि ये भी पहले रूमर था कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा, वो कंफर्म हो गया। तो अगर इस तरह की कोई बात है, मेरा ख्याल है इसको भी डिप्लोमेसी जरूर हैंडल कर लेना चाहिए। वेरी क्विकली जो शुएब भाई ने भी बात की बात में, जिस पे हम समअप भी करना चाहेंगे, फिर हम कल आएंगे तो इंशाल्लाह अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के स्क्वाड पे बात करते हैं। अभी हमने न्यूजीलैंड का स्क्वाड देखा, हमने उसके बाद इंग्लैंड का स्क्वाड देखा, ऑस्ट्रेलिया का देखा, बिग नेम्स, ठीक है। आपने मैक्सवेल की बात की, इंग्लिश की बात की, ट्रेविस हेड की बात की, केन विलियमसन, रिचर्ड रविंद्रा, यू नो ऑल ऑफ दीज पीपल। जब हम अपनी टीम को देखते हैं, जब भी आएगा वो स्क्वाड, आपको लगता है कि जो बाकी टीम, जो अभी शुएब भाई ने कहा कि यार आ जाओ ग्राउंड में, फिर बात करते हैं कि नेक्स्ट जो है वो मैं खिलाड़ी बनूंगा, आपको लगता है कि पाकिस्तान वो स्टार पावर मिस कर रहा है अभी इस चैंपियंस ट्रॉफी में? देखिए स्टार बन सकते हैं ना इसमें, अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी जीते हो तो और बड़ा स्टार बन सकता है, उसमें तो कोई इशू नहीं है। लेकिन इन्होंने बात की है कि पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्या है, वही मिडिल ऑर्डर बैक एंड का प्रॉब्लम है। 1999 की जो वर्ल्ड कप की टीम थी पाकिस्तान की, मेरे ख्याल वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम इन एन आईसीसी इवेंट। अब उसका लोअर ऑर्डर में अभी वही लिख रहा था मैं, लोअर ऑर्डर क्या है उसका। रजाक को अगर आप ऊपर बैटिंग नहीं करवाते ना, वो लोअर ऑर्डर में ही आता है। तो अगर आप 6 से, अगर मोइन खान की आउटस्टैंडिंग फॉर्म लगी हुई है, मोइन खान, शाहिद अफरीदी, वसीम अकरम, रजाक, ये 6, 7, 8, 9 बनता है आपका। तो अगर फायर पावर ये नहीं है तो फिर क्या फायर पावर है। और 1999 में
हम इसलिए दुनिया से आगे इसलिए इसलिए थे कि ऊपर से कंसोलिडेट करते थे, पीछ नीचे आके या मोइन रन्स करते थे या वसीम अकरम रन्स करते थे या रज़ाक करते थे। रज़ाक को कभी कभार अज्जू भी है, ये इस 11 लेकिन में आप मिस कर गए ना अजहर। नहीं ये अजहर सुन रहा होगा, ये मैंने- ये क्लिप वायरल ये होगा। मैंने- ये मैंने फाइनल की टीम बनाई है। नहीं तो फाइनल में अज्जू 99 में था ना यार। यूसुफ नहीं खेला था ना शायद फाइनल। नहीं फाइनल नहीं, फाइनल से पाने से पहले तो यूसुफ अनफिट हो गया था, लेकिन अज्जू सारे मैच खेले हैं ना यार। वो फाइनल की बना देना बहुत नहीं, इस फाइनल बार। नहीं करते बस थैंक यू गाइस। नहीं अज्जू मैं बता दूंगा उसको, ठीक मैं है, नाम नहीं लिखा। नहीं उनसे मेरी बात हुई थी, अभी बात होगी, साथ ही होंगे आपके। अभी बता दूंगा। लेकिन जो फायर पावर की जो बात कर रहे हैं ना, जो लो ये ऑर्डर बात के ठीक है फायर, इसकी। ये इस फायर पावर से आप That इससे can ज्यादा फायर पावर make क्या or break होगी? you, बिल्कुल। हमारा तो ये कहने का मकसद 5 तक तो हैं, 5 के बाद क्या है, 5 के बाद वो अगले जरा- 4 के हैं। Yeah. मसला हाँ ये बिल्कुल ठीक है। छठे सातवें का मसला है, जहाँ पे आपने गेम फिनिश करनी है या फिर स्कोर चलाना है तेज, तो वहाँ पे आपको हमेशा प्रॉब्लम आ रही है। ये पाकिस्तान का भी यही प्रॉब्लम है। होप यही करते हैं कि ऊपर से इतने रन हो जाएं कि आप मैच निकाल जाएं, बट ये मैंने इसलिए आपको सिर्फ बताया कि 1999 में पाकिस्तान this वाज is the कंसिडर्ड द फेवरेट। क्यों? बिकॉज पाकिस्तान अहेड ऑफ द टाइम इसलिए था क्योंकि आपका लोअर ऑर्डर इतना स्ट्रांग था कि वहां पे आपके रन रुक नहीं रहे थे। अच्छा हेड ऑफ टाइम पता क्यों था? ये जितने नाम लिए ना, इसमें इन लोगों को आने दिया है। आईसीसी ट्रॉफी तो हम फिर भी नहीं जीते थे। नहीं फायर नहीं पावर नहीं तो बहुत ही नहीं हमारे नहीं पास नहीं थी। नहीं वो तो चलो यार, वो 1 आउट डिसीजन हो गया ना, हम फाइनल का टॉस जीत के हमें बॉलिंग करनी चाहिए, तो ठीक है। लेकिन अगर तुम ये देख लो, ये जो लड़के हैं, ये चांस दिया तो आए ना। ऐसे अगर अफरीदी को यही स्टिग्मा रहता कि नहीं यार वो तेज है तो जल्दी हिट मार के आउट होता, तो कैसे बनता? ठीक बात है। तो उसको एक स्पैन दिया ना 5 साल का लॉन्गेस्ट। वो हारून भाई ने मुझे स्टोरी भी सुनाई। उन्होंने समझ कहा गया कि बात। फोन आया कि यार लड़का चाहिए, तो फिर शायद हमारे साथ वो कराची तो में चलो खेलता यार, था। ये तो हो गया ना, इंसिडेंट्स हो गए ना, लेकिन उसको लॉन्गर फॉर्मेट में से साइम अयूब की और शाहिद अफरीदी स्टोरी सेम है। और यार वो बड़ा फ्लैशी खेलता, ये करता वो करता, फाइनली साइम को you stuck जगह with मिली him. ना, बिल्कुल, you बन stuck with गया। him, हाँ। शाहिद को भी स्टिक किया ना हमने, बिल्कुल। तो शायद बन गया। एग्जैक्टली शेब भाई भी रहे, शेब भाई भी बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं मुझे जरूरत ही नहीं थी किसी की, मैं बना बनाया था। ये I'm just confidence very भी है। humbly This saying is this. exactly I'm just very humbly saying this. This is exactly what Basit bhai has missed, you know. लेकिन इतने साल इससे स्टिक किया, ये अभी तक बन नहीं रहा। कितने साल आप आप बंदे नहीं रहे। कितने साल सपोर्ट किया आपने, कब से आप इसको रख रहे हैं? अब तो सीख ही perfection नहीं क्या रहा। बनाना था उन्होंने? सीख ही नहीं यार रहा। नहीं, अब असल में बात ये नहीं, अब मैं क्या जवाब दूं, आप बड़े भी हैं, मैं मेजबान भी हूं, मैं मेहमान नवाजी भी करना मैच शुरू होने लगा। But thank you so much, Mazi bhai, for being with us. Thank you so much, Shoaib bhai, for being with us. Alhamdulillah, you know, I think it was a wonderful show, one of the finest shows that I've ever conducted. मेरे ख्याल इसके बाद मैं बन जाऊंगा इंशाल्लाह. But thank you so much, Ajab, for being with us. For everybody who's out there, ladies and gentlemen, look after yourselves. Game on है इंशाल्लाह. कल मिलते हैं. जो 6 और 7 की इन्होंने बात की है, कल इसके ऊपर जरूर कॉन्वर्सेशन करेंगे कि या तो मैच आपको फिनिश करना है, मैच फिनिशर नहीं है इस नंबर पे, और अगर रन्स को आगे लेकर जाना है तो कौन खिलाड़ी करेगा. We'll do that. We'll speak about West Indies as well. So stay tuned for more action, ladies and gentlemen, inshallah. Mata salam minakum de Allah paman. Allah Hafiz. Game on है.